Hello, dosto. How are you all? Hope you all are fine, fit, and happy. Today we are going to study decimal representation of rational number. Okay. Then what is rational number? A number in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0 is known as rational number. In the rational number, p by q can be expressed as decimal. Okay. And when we divide p by q, every rational number p by q can be expressed as decimal, and when we divide p by q, two possibilities arises. First possibility is that uh, when we start dividing p by q, after some step, remainder becomes 0. After some step, remainder becomes 0, and decimal expansion ends after some digits. Okay. For example, here is 28 divided by 25. This is a rational number. When we divide 28 by 25, what happened? 3, 1 point and 0. 25 on the 25. Here 5, 1 more 0. And 25 to the 50. First step, second step, third step. In the third step, remainder become 0. And here after decimal, there are two digits. Okay. And decimal expansion ends here. Any number in the form of p by q can be expressed as decimal. Here is the first case when decimal expansion ends after two digit and the remainder becomes 0 after some steps. Okay, hope you have understood it. Every rational number can be expressed in decimal, p by q form. Okay, when we divide p by q, two cases arise. First case is decimal expansion ends after some digit. Why? Because after some steps, remainder becomes 0. When remainder becomes 0, division is complete. Okay, hope you have understood it. This was the first case. And what is the second case? Second possibilities. This was the first possibility, and this is the first possibility. What is second possibility? Second possibility is that remainder never becomes 0, and a digit or a block of digit or a set of digit keep on repeating periodically. Okay, how? Here is 9, rational number. We can write here remainder never becomes 0. You may write it by on your own. Okay, I am just giving here example. Okay, whatever I said, you may revise it or revisit or rewatch and write it down whatever I have said in the definition of second possibility. Understand? uh, Let us take an example of 25 divided by 9. Okay, what happened here? Here happened that 25 is divided by 9, and 9 to the 9 3 the 9 to the 9 to the 20 18, remainder 7, and here nothing, and we have to put here 0 a point, and here 0 and 9 9 9 7 are 63, and here 7, and here 0, and here 1 0 again. 9 7 are 63. Here 7 digit, a single digit, we keep on repeating after a finite number of statements, after one step, after one step, after one step. In all step, there is a repetition of single digit, and that is 7. So in the second case, what happened in the second possibility? It happened that the remainder never becomes 0. You keep on dividing, and the remainder will never become 0. Okay, and this expansion keep on repeating. This digit 7 digit digit 7 will keep on repeating. Okay, uh, infinitely. Okay, have you understood it? Second case. Okay, we may take another example. Okay, there are given many examples in the book. We will see that and do that. Okay. Then let's come to know what is terminating decimal. Okay, let's write first heading terminating decimal, then we will study. Okay, are you understanding? Hope you are understanding it, because it is not very hard, it is an easy. Okay, come on.
दिल लगा के सीखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, जब किसी चीज को आप दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उससे मिलाने आपको उससे मिलाने के लिए साजिशें करेगी। आप इसे सीखना चाहेंगे मैथ को, तो हर तरह से आपको पूरी दुनिया सिखाने में लग जाएगी। आप इरादा कीजिए और सीखिए। ओके, देन व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? लेट्स लर्न टर्मिनेटिंग डेसिमल। Terminating decimal. Okay. A number or a decimal in which decimal expansion ends after some digit is known as terminating decimal. Understand? Let's example. For example, 0.25. Here decimal ends. Here it is a decimal and its decimal expansion end after 2 digit. Okay. Other example, 1.265. Okay, these are examples. Hope you have understood it. And there are many examples which we will take and see and try to understand it very clearly. For example, 1 by 4 equal to 0.25 we have written here, and 5 by 8 5 by 8. Here we have to get 0 and 0 and 8 6 are 48, 2 0 and 8 2 is 16, 4 0 8 5 is 25. After 30 digit this expansion ends. This is what? This is terminating decimal 0.625. Okay, and there is an important rule. There is an important rule. What is the rule? If there is a rational number p by q, then it will be terminating if and only if we can write like this rule, or you can also write here a note. Okay, a rational number p by q is terminating if and only if the factor of q is either 2 or 5 or both. You may write it. जब भी कोई रेशनल नंबर होगा p by q फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग उसी वक्त होगा जब आपका q का जो फैक्टर होगा वो या तो सिर्फ 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर दोनों होगा। ओके, 1 2 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी 2 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 से ज्यादा 5 हो सकता है। ठीक है, 1 2 1 5 हो सकता है, या 1 से ज्यादा 2 1 से ज्यादा 5 इसका फैक्टर होगा। ओके, it is very important and you should write it and you should remember it by heart and soul. Okay, hope you have understood it. q का फैक्टर अगर 5 और 2 के अलावा कुछ दूसरा होगा तब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका, है ना। और रिपीटिंग भी हो सकता है, हाँ, आपका क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है,
और रिपीटिंग डिजिट आपका 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, according to the number which is present in the denominator of the rational number. Hope you have understood it. Let's move now. Express example. Without actual division, find the which of the following rational number are terminating. बगैर डिवीजन के बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल इज 5/32. 5/32 यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ऊपर में 5 है, नीचे में ऊपर नीचे कटने वाला कोई नहीं है. ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. और 5/32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/32 को 2 to the power 5 लिख सकते हैं. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 32 है उसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है. ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा. यस इट इज टर्मिनेटिंग, लोग लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यस इट इज टर्मिनेटिंग. Hope you have understood it. Let's take another example. 11/24. 11/24. Here ये simplest form में है. ठीक है, 11/24 यहाँ पर क्या होगा आपका 2 to the power 3 into 3. यहाँ पे आपका जो 24 है उसका आपका फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, यानी 2 और 5 के अलावा भी कुछ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग. ओके, यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा नो, इट इज not terminating. Hope you have understood it. Let's take other example. 27/80. Let's first raise it. (27/80). Here it is in simplest form, and here it is 16. 5s are 32. 16 5 are 18. 16 means 2 to the power 4 and 5. Here the factor is 2 and 5 both. So here the factor of 80 is 2 and 5 both. So it is terminating decimal. यहाँ पे क्या होगा आपका, yes it is terminating decimal. Okay. Yes, it is. It is what, terminating decimal. Terminating decimal. Hope you have understood it. Let's erase it. Many of the students see my video, but I find no comment or either one comment. I keep on commenting in the comment box or in the comment box. Okay, come on, let's check example. Example is given, example completed. Now let's take the repeating or recurring decimal. What is repeating decimal or what is recurring decimal? Let's learn it, and before that let's take one glass of water. Hope you have understood it, and now we are going to study repeating decimal. And repeating decimal is also known as recurring decimal. Repeating decimal. A decimal in which a digit or a set of digit, a group of digit, a block of digit keep on repeating periodically. Okay, is known as recurring or repeating decimal. Hope you have understood it, and you may write the definition according to my word or according to book's word. Okay, whatever you like, you do the same. Hope you understood it. Let's take example. Here example is 27 by 80. Okay,
What happened here? This is an example and this is not in simplest form, so we have to first convert it in the simplest form. How it will be converted into simplest form? We have to cut 27 1 is 27, 27 3 is 30, 81. Okay, 1 by 3. And now what we will do? We will divide 1 by 3. It is smallest, it is smaller, it is greater, so we have to put here point. Before point we have to put here 1 0. It is scientific way, it is standard way to divide. Okay, and keeping here 1 0 1 point, here 1 0 will come, and 3 3 is a 9, again 1, again 0, 3 3 is a 9, and it will keep on repeating, and it will never become 0. Here remainder never will become 0. Okay, here remainder never will become 0, and you have, I hope you have understood it. Okay, and let's check other example. Hope you are understanding my way of teaching, whatever I am teaching. Okay, come on. Terminating decimal, repeating and recurring decimal. 3 by 11. Let's check 3 by 11. 2 by 3. Let's check 3 by 11. 3 by 11 is what is? We will see it. Here in example we can write, for example में क्या हो जाएगा आपका 1.333, ये आपका क्या है, ये आपका ये रिपीटिंग होता जाएगा 1.3. इसको इस तरह से लिखते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? दूसरा एग्जांपल है 2.273 273, ये तरह से रिपीट होता जाएगा. इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 2.273, ये आपका हो गया, ये एग्जांपल हो गया. एक रेशनल नंबर है, वो क्या है आपका बुक में दिया हुआ 3/11. 3/11 है इसका. ये रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल कैसे होगा? हम लोग देखते हैं इसे. 3 को डिवाइड करेंगे 11 से, स्मॉलर ग्रेटर 0, हियर 11 2 जा 22, here 8, and here 0. What will happen? 11 7 जा what? 77. 3 again 30, again 30, again 30, फिर 11 2 जा, फिर 11 7 जा, 11 2 जा, 11 7 जा, ये 2 7 2 7 2 7. Keep on repeating. Here 2 digit repeat periodically. A group of 2 digits, a set of 2 digit is repeating periodically here. Okay, so then it will continue and it will continue. Okay, then what will be the answer? Answer will be 0.27, and this. Hope you have understood it. This is decimal form and this is rational form. Okay, here rational number is being converted into decimal number or decimal number is also known as just decimal. Okay, hope you have understood it. Come on, let's move further. Let's erase it. जब भी कोई रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में लिखते हैं तो आपका ग्रुप ऑफ डिजिट या फिर एक सिंगल डिजिट आपको रिपीट होता है. तो मैक्सिमम कितना डिजिट हम लोग का रिपीट होगा, उसका एक फॉर्मूला है उसका, है ना. उसका क्या है? जब भी कोई नंबर आपका हो 1/n हो रेशनल नंबर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका उसका जब हम लोग डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट जो होगा वो कितना होगा? वो आपका होगा n-1 होगा. अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6-1 डिजिट मैक्सिमम डिजिट रिपीट करेगा. 6 से कम भी हो सकता है. ओके, अगर यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे जो आपका रिपीटिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डिजिट होगा, वो आपका 19 से कम ही होगा, 18 होगा या फिर 18 से कम होगा. ओके, हाउ वी नो दिस? वी विल learn it by example, and we may also write what is the comment, what is the statement for this. Okay, we may write it, the maximum number of entries in the repeating decimal in the repeating block of digit, the maximum number of entries or digits. Okay,
in the repeating block of digits in 1 by n is n minus 1। जब भी हम लोग 1 बाई एन कोई रेशनल नंबर होगा उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट करेगा वो आपका n माइनस 1 से कम ही होगा, अगर आपके उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में आपका क्या हो, डिनोमिनेटर में आपका n हो। ओके, जैसे कोई नंबर है आपका 16/7 है, तो इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 16 इंटू 1/7। ओके, अब यहाँ पे जो डिजिट रिपीट करेगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा 6 से कम ही होगा, है ना, या फिर 6 होगा मैक्सिमम। और फिर जो भी होगा उसको जब इसे 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो क्या होगा आपका 6 डिजिट ही मतलब रिपीट करेगा, या फिर 6 से कम डिजिट जो भी डिजिट रिपीट कर रहा होगा वही डिजिट रिपीट उसी उतना ही डिजिट रिपीट करेगा, लेकिन डिजिट क्या होगा जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वो चेंज हो जाएगा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू हैव नो डाउट, यू मे हैव नो डाउट हियर। We will learn it by examples which may be given in the book, or we may take example by ourselves. For example, 15/7 क्या 15/7 आपका एग्जाम्पल है। 15/7 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 15 इंटू 1/7। 1 को हम लोग 7 से जो है डिवाइड करेंगे, जो आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर इससे 5 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल का टाली हो जाएगा। उसमें हम लोग करना नहीं, हम लोग क्या करना है, हम लोग जस्ट 15 ही को 7 से डिवाइड करना है और देखना है कि कितना डिजिट होता है। 7 से ज्यादा होता है, 7 से कम होता है, या फिर मैक्सिमम 6 जाता है, 6 से कम होता है। लेट्स चेक। 7 दूनी 14, हाथ में 1 0.0, 7 कितना 7, हाथ में 3 0, 7 चौके 28, हाथ में 2 0, 7 दूना 14, उसके बाद 6 और यहाँ पे 0, 7 8 56, हाथ में 4 और फिर कितना यहाँ पे कहीं 40 है नहीं है, 7 5 35, हाथ में 5 0, 7 49, हाथ में 1 0। देखिए यहाँ पे 1 था, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 7 1 7, मतलब ये 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो, उसके बाद फिर वही सब आएगा, क्या आएगा 1 4 2 5 8 7, फिर वो सब आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 गया है। 6 जा भी सकता है, 6 नहीं भी जा सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, कितना गया था, हम लोग लिखे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, नहीं लिखे ना, या उसी को तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला में 2 डिजिट किया था, और एग्जांपल देखेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। Here what will be answer will be written, this answer will be written here, may be written here, okay, and what will be the answer will be 2.142857, okay. Let's raise it. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कोई भी डेसिमल नंबर जो रेशनल नंबर वाला डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, डेसिमल जो होता है वो आपका वो आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। जिस डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। जिस डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, PYQ फॉर्म में रहेगा तो भी रेशनल नंबर होगा, और डेसिमल फॉर्म में होगा तो भी वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और वो सारा डेसिमल रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, और रेशनल फॉर्म में भी हो सकता है, PYQ फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल का 2 प्रकार होता है, 3 प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पहले 2 प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है कि रेशनल नंबर डेसिमल, और दूसरा होता है कि नॉन रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर डेसिमल, ओके।
या फिर डेसिमल ऑफ द टाइप इरेशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर ऑफ द टाइप रेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रेशनल डेसिमल की बात कर रहे हैं। तो those decimal which are rational, okay, rational can be converted either in can be those decimal which are non-repeating and recurring, non-repeating and recurring, non-repeating and non-recurring, ठीक है, वो आपका रेशनल नंबर हो गया। दो डेसिमल which are terminating or non-terminating and repeating can be converted into rational form. Every decimal that is repeating and recurring, okay, and not ending, ठीक है, non terminating can be converted into decimal, and those decimal which are terminating can also be converted into decimal. What is written in the book, we may take it. Every rational number is expressible either in the terminating decimal और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। हर रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर रेशनल ही है, वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। उसके बाद दूसरा नंबर में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा हुआ, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग इज रेशनल नंबर। यानी हर वो डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या रिकरिंग होता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात जानना चाहिए जो कि यहाँ नहीं लिखा, वो क्या है, वो सारा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, रिकरिंग भी नहीं होता है, रिपीट भी नहीं करता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, वो सारा क्या होता है, वही रेशनल नंबर होता है। ओके, अंडरस्टूड, यू विल रीड इट आफ्टर दिस चैप्टर, ओके, और आफ्टर दिस एक्सरसाइज। तो क्या देखते हैं हम लोग, एग्जांपल में आएंगे, एक्सप्रेस 3 होल नंबर 1/8 इन डेसिमल। कट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। एग्जांपल नंबर 1 है ना, एग्जांपल नंबर 1 ये क्या है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 है, अभी जो कर रहे हैं उसमें एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 क्या करना है, 3 होल नंबर 1/8 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 8 3 24 25/8 ये है। ये क्या है, ये आपका पी बाई क्यू फॉर्म में है। यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है आपका, क्यू जो है आपका, क्यू का फैक्टर कितना है, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको इसे डिवाइड करना होगा, किसे डिवाइड करना होगा, 2/25 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, हाथ में 1.0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 3.125। hope you have understood it. If you have any problem you may comment. उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। इतनी आसान चीजें नहीं समझ में आएगी तो और क्या समझ में आएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कम ऑन, एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल। 2/11 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2/11 कैसे करेंगे, बहुत इजी है, पॉइंट बिफोर पॉइंट दिस, 11 बन जाए 11, 9, 11 8 जा 88, is everything okay, everything is okay। 2 here nothing, here 2, 11 1 ja 11, here 9, here, and then 1 8 1 8 1 1 will keep on repeating and the remainder will never become 0. What will be the answer? Answer will be 0.18. Hope you understood it. We have converted rational number into decimal number. Okay, decimal number is also known as just decimal, not just decimal, decimal.
कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 3/13 3/13 को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। आपका 1/7 का पहले डेसिमल एक्सपेंशन पता कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 2/7, 3/7, 4/7 का करना है। एक कर लेने के बाद सबको मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1/7 पहले हम लोग को पता करना है, ठीक है। उसके बाद 2/7 पता करना है, उसके बाद 3/7 पता करना है, उसके बाद 4/7 पता करना है, ठीक है। कुछ भी पता कर लेंगे हम लोग, पहले इसको पता करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 7 1 7, 3, 0, 28, 2, 0, 6, 8, 56, 4, 0, 5, 1, here 1, here 1, 7 1 7। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये चीज रिपीट होता रहेगा, ठीक है। क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपका 1/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1/7 आपका हो जाएगा 0.14285 ये हो जाएगा। अब हमारा 2/7 क्या होगा, 2/7 वो होगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 बाई नो नो 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 0.14285 ओके। यहाँ पे इसको जैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बुक में भी क्या है, कैसे क्या है, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जितना आएगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3/7 को हम लोग उसी तरह करेंगे, 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3/7 आपका हो जाएगा 3 इंटू ये आपको होगा, फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, ये आप सब लोग सारा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सबको पता करना नहीं, 1/7 पता करनी है, उसके बाद 1000/7 होगा, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव टू लर्न more and more knowledge, okay. We have to learn more and more knowledge. More knowledge we have, more powerful we are, because knowledge is power. More we have knowledge, more light we have to see the world, because knowledge is light, okay. जितना आपके अंदर नॉलेज रहेगा आप दुनिया को उतने अच्छे तरीके से उतना ज़्यादा आप देख पाएंगे, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना आपके पास पावर रहेगा। Hope you understood it. So we must gather more and more good knowledge, okay, useful knowledge. Then what is next example? अब हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, जिसमें डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा p by q फॉर्म में, ओके। हाउ विल डू इट, we will do it very efficiently, very logically by special method, okay. What is the method? Here example number 6, we have to convert recurring decimal into rational form. How will do it, we will do it. Solution, let we may also write beautifully, let 0.3 x equal to 0.3 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 वी गेट, ओके। यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, हम लोग इसको एक के ऊपर 1 0 यानी 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10x इक्वल टू क्या है 3.333 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग 2 में से 1 को बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे subtracting 1 by 2 we get, subtracting question 2 by question 1 we get, what we get 9x equal to 3,
and x equal to 3 by 9 equal to 1 by 3 because 3 1 is 3, 3 3 is 9. Hope you have understood it and you may have no doubt here. Now we have to erase it so that we can solve other example. Come on. Example number 7. We will not solve example number 7 because it is of the same type. We will solve example number 8. No, we will not solve example number 8. It is of the same type. Let's take example number 9. What is example number 9? 0.57. Example number 9. What is example number 9? 0.57. इसे हम लोग क्या करना है, 57 के ऊपर रिकरिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग रेशनल फॉर्म में यानी पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. हाउ विल डू इट? विल डू इट वेरी इजी वे, इन अ वेरी इजी वे. लेट्स टेक, let x equal to 0.57 equal to 0.5757 dot इक्वेशन नंबर 1. ये अपना मिल जाएगा. उसके बाद क्या है, अब इसको हम लोग क्योंकि दो नंबर के ऊपर रिकरिंग यानी दो डिजिट आपका सेट ऑफ टू डिजिट जो है बार बार रिकर कर रहा है यानी बार बार रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली, तो हम लोग क्या करेंगे, एक के ऊपर दो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे. एक के ऊपर दो जीरो कितना होता है, 1 into 0 is 100. ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 100 we get what we get 100x equal to 57.5757 and it keep on repeating. Equation number 2. Now we will write subtracting equation 1 by 2 we get what we get 99x equal to 57 because इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो इधर वाला सारा कट जाएगा, ये बच जाएगा. x इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाई 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 तिया 57 और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 का टेबल हम लोग 19 बार पढ़ेंगे तब यहाँ पे ये 57 आएगा. 3 का टेबल हम लोग 33 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा. तो 19 बाई 33 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. इसको और अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. दिस इज द आंसर. लेट्स रेज इट. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर. एग्जांपल नंबर आपका जो 10 है वो ऑफ द सेम टाइप है. छोड़ते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं. ठीक है, क्या है 2.4178 2.4178 2.4178. एग्जांपल नंबर 11 2.4178. ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 2.4178. ठीक है, ये इस तरह से है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2.4178 टू ये है ना 178 ये आपका रिपीट होता जाएगा. ये एक्सप्रेशन नंबर 1 बना देते हैं. आप क्या करते हैं, 1 के ऊपर कितना कितने डिजिट के ऊपर आपका बार है या फिर कितना डिजिट आपका रिकरिंग कर रहा है यानी बार बार ओकर हो रहा है पीरियडिकली, तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1 के ऊपर 3 जीरो से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000 वी गेट व्हाट वी गेट 1000x इक्वल टू 2. ये कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 घर इधर चला जाएगा. ओके, 4178 4178 पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे चला जाएगा, चला गया. अब ये रिपीट होता रहेगा, क्या होता रहेगा 178. ठीक है, और इसी तरह से रिपीट होता रहेगा.
8178 हो गया। उसके बाद फिर 178, ये तो आपका रिपीट होता रहेगा। 178 ये आपका रिपीट होता रहेगा, है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, या फिर then when we will subtract this from this, then we will get this, okay. and then x equal to क्या हो जाएगा आपका, x equal to आपका हो जाएगा 2 4 1 5 1 5, और ये 4 होगा, और इसके नीचे ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1.1 है ना, तो इसके बदले में 0.1 की तरह एक डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और हटा देंगे हम लोग, और एक जीरो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कट कर 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इन अदर वीडियो, जस्ट नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टडी एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1B, okay.